Hello students, I Priya Rohira welcome you all in my today's lecture. Many students have demanded कि मैम आप एक live video बनाइए हमारे term 2 पे. So today I have decided to prepare a live video for you, especially for term 2. As you all know that term 2 examinations are coming nearer और उसके जो भी topics हैं उसको अच्छे से cover करने के लिए IP में अच्छा score करने के लिए I am preparing this video. So my first topic that I am going to cover today is function in MySQL. You all are aware about the function. A function performs some specific task. It can give result as a single value or multiple value, depends on the function. So in MySQL, what are the categories of function? So here the types of function or the categories of function, that is scalar or single row function and aggregate और मल्टीपल रो फंक्शन. कई बार एग्जाम में ये स्केलर के नाम से आता है और कई बार सिंगल रो के नाम से भी आ जाता है. सो यू शुड नो बोथ दी टर्म्स. सो स्केलर और सिंगल रो फंक्शन एंड एग्रीगेट एंड मल्टीपल रो फंक्शन. So now student, first of all I will explain you single or scalar or single row function. As I already told you, single row functions are those functions which perform on each and individual row and gives the output for each row. अभी मैं आपको टेबल बना के इस पूरे फंक्शन को पूरी तरह क्लियर करूंगी कि ये कैसे वर्क करता है. बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू कैटेगराइज स्केलर फंक्शंस की कौन कौन सी कैटेगरी को हम स्केलर फंक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ और न्यूमेरिक फंक्शन, सेकंड स्ट्रिंग फंक्शन एंड थर्ड डेट एंड टाइम फंक्शन. ये तीनों कैटेगरी आपके टर्म 2 पोर्शन में भी है. So first of all, I will include this math and numeric function, and in this function we are going to study power function. इस जिसको हम पाव भी कॉल करते हैं. फंक्शन ब्रैकेट्स लगा दीजिए. सेकेंड आप स्टडी करेंगे राउंड फंक्शन. थर्ड हम स्टडी करेंगे मोड एंड फोर्थ हम स्टडी करेंगे SQRT फंक्शन, दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन. These all four function one by one with example I will explain you in my today's lecture. So students, now I'm going to explain you math और numeric function. And as I already told you कि इस category में मैं आपको ये 4 function explain करने वाली हूँ with example. Okay. So first of all, power और power function. This function is helps to find out the power of any number. How? Just have a look on the example. Suppose I have written select power. So here 2 is my base and 3 is my power. So here it will be calculated as 3. So 2 multiply by 2 multiply by 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. So your output will be 8. So you can pass any base value here. You can pass any power value here. Okay, so it will calculate the power of any given number. Okay, and here another example that I'm going to explain you can take power in the negative form also. So in that case, what will be the result? It will perform the result kind of this. So 1 by 8, when you will calculate this result, it will give the value in the decimal form. So take care whether the power is given in the positive or in the negative value. And even you can apply this function on some table also. जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है और मैं चाहती हूँ कि इन पे भी पावर फंक्शन में अप्लाई करूँ. तो आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे? In this situation, you will write select power और power. कौन सी फील्ड पे अप्लाई करनी है मुझे? मार्क्स फील्ड पे. So I will write here marks. What will be the power? Suppose it's 2. So it will calculate 210.2 the power 25 the power 2. Here my this field is marks is my base and this is power. And because of I am applying on some table, तो आप इसको यहीं पे फिनिश नहीं कर सकते. आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा from what is my table name? My table name is Steven. Okay. एंड अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई करते हो वो कोई टेबल नहीं है तो आप उसको सीधे भी लिख सकते हो. बट अगर आप कोई टेबल पे कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस टेबल का रेफरेंस देना पड़ेगा. सो बाय दिस वे यू कैन अप्लाई दिस फंक्शन ऑन एनी टेबल ऑल्सो. ओके, जैसे मैंने आपको बोला था कि स्केलर फंक्शन
takes the value from the each row and gives the output according to each row. Okay, so what does it mean? पहले इसने ये वाली वैल्यू ली, पावर कैलकुलेट की और इसका रिजल्ट दिया. नेक्स्ट ये वाली रो ली, पावर कैलकुलेट किया और इसका रिजल्ट दिया. मीन्स हर एक रो का इंडिविजुअल आउटपुट है, इसलिए इसको सिंगल रो फंक्शन या स्केलर फंक्शन कॉल करते हैं. ओके, एंड इन माय नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज मोड. मोड आपने पाइथन में भी स्टडी किया है, जिसमें हम परसेंट साइन यूज करते थे, बट अभी हम यहाँ पे परसेंट साइन यूज नहीं करेंगे. सो इट कैलकुलेट्स द रिमाइंडर ऑफ एनी नंबर. अगर आप डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे? हैव अ लुक. सेलेक्ट mod. Suppose if I divide 5 by 3, so what will be the remainder? अगर आप divide करते हैं, so here my remainder will be 2. So my output will be 2. So it will calculate the remainder if I am dividing any number by any number. Understood? Now, the same way you can apply on दिस टेबल ऑल्सो. ओके, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, शायद ये किसी बुक में भी नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल ही बता रही हूँ कि अगर आपके पास में डेसिमल में कोई डिजिट है, फाइन, अगर आपके पास में कोई डिजिट डेसिमल में है तो आप रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे मैम जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसे, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है. ओके, हाउ? मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि अगर मैंने लिखा सेलेक्ट मोड और यहां पे मैंने ये फील्ड नेम ले लिया मार्क्स, और मैंने सपोज इसको डिवाइड किया 2 से, फ्रॉम T1. सो माय फर्स्ट डिजिट इज 210.25. तो आउटपुट में 0.25 तो आप मान के चलिए. अब यहां पे क्या वैल्यू आएगी? यहां पे आपको 210 में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा. तो मैंने यहां पे 210 में 2 का डिवाइड करती हूं. My remainder is 0. So here I will put the 0. So output will be 0.25. Output will be 0.25. आप इसको नॉर्मल डिवीजन मेथड से जैसे रिमाइंडर निकलता है वैसे नहीं करेंगे. MySQL में जब आप रिमाइंडर निकालेंगे तो ये आपको आउटपुट इस तरह से परफॉर्म करेगा. ये सब चीजें क्यों बता रही हूँ? एग्जाम में कई बार हमारे पास डेसिमल में वैल्यूज आती है और हमें उसका मॉड्यूलस निकालना होता है, और हमारे दिमाग में क्या होता है कि हाँ रिमाइंडर निकालना है, सिंपल डिवीजन प्रोसेस किया और लगाया, पर इस बात का ध्यान रखना. ओके, सो हियर आई हैव कंप्लीटेड माय mod फंक्शन which is used to calculate the remainder of any number when we are dividing. Okay, now my last function of this category, numeric function category, I will explain you round function. वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं और स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी फंक्शन में ही कंफ्यूज होते हैं. सो आई विल मेक यू क्लियर ऑल दी पॉइंट्स, ऑल दी रूल्स कि हम राउंड अप कैसे करते हैं. ओके, माय फर्स्ट एग्जांपल. सो राउंड फंक्शन केम्स इन माय माइंड कि ये राउंड अप करने का वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेसिमल प्लेसेस, बट हर एक वैल्यू की, हर एक पैरामीटर्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. सो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. My first value, suppose I had given 49.56. I have given only single parameter. मैंने कॉमा करके कोई दूसरा पैरामीटर नहीं दिया, तो इसमें आप सिंपली वैसे ही राउंड अप करेंगे जैसे आप नॉर्मली आप अपने मार्क्स को राउंड अप करते हैं. जैसे सपोज अगर आपके 8.5 आए तो आप क्या कॉल करते हो कि मेरे 9 मार्क्स हैं, तो सेम प्रोसेस इसमें हम अप्लाई करेंगे. 49.5 पॉइंट के बाद 5 या अबाव 5 होता है तो हम उसको नेक्स्ट डिजिट से राउंड अप करते हैं. देन माय आउटपुट विल बी 50. ओके, अनदर एग्जांपल. यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं लिखा है, तो यूं नहीं कि आप भी सीधे ऐसे ही लिख दो, आपको प्रॉपर ऐसे लिखना पड़ेगा. सेलेक्ट राउंड, यहां मैंने कैपिटल में डाला, यहाँ स्मॉल में डाला क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है. ओके, आपकी इच्छा हो आप उसको कैसे भी लिख सकते हो. मैंने डाला, सेम डिजिट ले रही हूँ 49.56, 1. अब मैंने सेकंड पैरामीटर भी लिया है. ये सेकंड पैरामीटर मुझे ये बताता है कि मुझे डेसिमल के बाद कौन सी प्लेस पे राउंड अप करना है. अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया, मीन्स मुझे डेसिमल के बाद मेरी फर्स्ट डिजिट कौन सी है? 5. इसको राउंड अप करना है. अब राउंड अप करने के लिए मुझे क्या देखना है? इसका जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट डिजिट है, दैट शुड बी 5 और अबाव 5. अगर है
तो 5 will become 6, और अगर नहीं है then 5 will become 5 only. So my output will be 49.5 के बाद 6 है जो कि above 5 है, so 5 will become 6. So my output will be 49.6. Understood? अगर मैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लू मैं राउंड 49.99 एंड यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 2. तो इसका क्या मतलब है कि डेसिमल के बाद मेरे को सेकंड प्लेस पे राउंड अप करना है. सो दिस इज माय फर्स्ट प्लेस, दिस इज माय सेकंड प्लेस. सो सेकंड प्लेस के बाद में तो कोई डिजिट नहीं है, सो आप उसको क्या अज्यूम करेंगे, 0, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर मैं 0 लगाती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, अंडरस्टूड. सो 9 के बाद मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे 0 है, सो 9 विल बिकम 9. ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो माय आउटपुट विल बी 49.99 ओनली. एंड यहाँ पे तो वो थे कि जो मैंने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर जो दिया था वो मैंने पॉजिटिव में लिया था. अब मैं सेकंड पैरामीटर को नेगेटिव में ले रही हूँ, जो अभी आपकी बुक में भी अवेलेबल नहीं है पर एग्जाम में आ सकता है. अब नाउ सपोज मैं इसी एग्जाम्पल में कुछ चेंजेस करती हूँ. मैंने यहाँ पे ले लिया -1. अगर आपका ये पैरामीटर नेगेटिव में है तो आप डेसिमल से पहले वाली डिजिट पे वर्क करेंगे. सो डेसिमल के पहले वाली -1, -2, -3, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे. मैंने यहाँ लिखा -1. सो व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे 9 है, सो मुझे इस वाली डिजिट को देखना है. तो इस डिजिट से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 4, मतलब मुझे इस पे वर्क करना है. यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि जब हम डेसिमल के बाद ऑपरेट करते हैं तो उसी नंबर को राउंड अप करते हैं. बट अगर आप माइनस में आपका आर्ग्यूमेंट है तो जैसे -1 पे ये है, ये वाली डिजिट आपको देखनी है. यहाँ पे है 4, पर चेक आपको ये वाली डिजिट ही करनी है. अब 4 के बाद क्या है, 9, अबाउ 5 है या 5 है, देन 4 विल बिकम 5 एंड 9 विल बिकम 0. तो 49 राउंड अप होके क्या हो जाएगा आउटपुट, आपका आउटपुट हो जाएगा 50. अंडरस्टूड. अगर मैं यहाँ पे सपोज मेरे पास में एक और डिजिट होता 2, नहीं भी होता तो हम 0 अज्यूम कर लेते, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देती -2. सो -1, -2, और -2 के पहले वाला कौन सा नंबर है, 2. तो 2 पे आ जाओ और इनको इरेज कर दो. अब देखो 2 के बाद क्या है, 4, जो कि बिलो 5 है. 2 विल रिमेन 2. तो यहाँ पे क्या होगा आउटपुट में, 2 का 2 ही रहेगा और ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे एज यूजुअल 0 0. तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 200. अब एक और थर्ड, अगर मैं यहाँ पे -3 लेती, सो -1, -2, -3. अब -3 से पहले कुछ भी नहीं है तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ यहाँ पे 0. वाई, मतलब 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 2, जो कि बिलो 5 है, मतलब 0 विल बिकम 0 और ये तीनों डिजिट भी क्या हो जाएंगे 0. तो माय आउटपुट विल बी 0. अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ होता 5 और मेरे पास सेम क्वेश्चन होता, तो 0 के बाद क्या है 5, मीन्स 5 या अबाउ 5 हो तो हम राउंड अप करते हैं, देन 0 विल बिकम 1 और यहाँ पे 0 0 0 0 0 0. अंडरस्टूड. तो मेरा आउटपुट क्या आता, 1000. सो आई होप स्टूडेंट राउंड फंक्शन के मैंने सारे वेरिएशंस आपको बताए. हाँ, एक और बात कि मैंने आज जैसे आपको बोला था कि राउंड फंक्शन आप किसी टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हो, तो सेम वे हम वैसे ही करेंगे. सेलेक्ट राउंड और ब्रैकेट में मार्क्स, और जितने भी प्लेस पे आपको राउंड अप करना है आप वहां पे मेंशन कर सकते हो. एक और बात जहां पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमारे पास में कोई 99 की तरह कोई डिजिट आ जाती है. ओके, जैसे मैं इसी में एक आपको एग्जांपल और दे रही हूँ. यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 1. ओके, यहाँ पे क्या है 9, डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस क्या है 9, उसके बाद में क्या है 9, अबाउ 5 है, सो 9 विल बिकम 10. अब मैं यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिख सकती 109. सो इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, हियर 9 विल बिकम 10. सो 10 का 0 आप यहाँ पुट करेंगे और कैरी यहाँ डाल देंगे, तो 49 विल बिकम 50. 50.0 विल बी योर आंसर. ओके, आप वहां से कैरी यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे. फाइन. पर अगर क्या होता कि मुझे यहाँ पे मैंने डिजिट चेंज कर दी 995 और अब मुझे डेसिमल के सेकंड प्लेस को राउंड अप करना है. तो डेसिमल का सेकंड प्लेस क्या है मेरे पास में 9. डेसिमल का सेकंड प्लेस क्या है 9.
फाइन। 9 के बाद क्या है? 5। 5 या अबाव 5 होता है तो हम राउंड अप करते हैं, तो 9 विल बिकम 10। तो 10 होते ही आप क्या करेंगे? 0 यहाँ लगाएंगे और कैरी फॉरवर्ड होके कहाँ जाएगी? इस 9 पे। सो 9 + 1 विल बिकम 10, फिर 10 का 0 यहाँ लगेगा, कैरी फॉरवर्ड होके कहाँ जाएगी? इधर। तो ये पूरा डिजिट क्या बन जाएगा हमारा? 50। वन आंसर विल बी 50.90। सो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में 9 को राउंड अप करना है तो आप सीधे सीधे 10 नहीं लिखेंगे, 10 का 0 करके कैरी आगे फॉरवर्ड करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे 8 होता, सो 9 विल बिकम 10, 10 का 0 और कैरी कहाँ आ जाती? 8 पे। 8 + 1 9, तो मेरा आंसर आता 49.90। सो आई होप स्टूडेंट कि अब मैंने सारे वेरिएशंस बता दिए राउंड फंक्शन के, इसीलिए स्टूडेंट्स राउंड फंक्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बट आई थिंक कि जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसका मैं प्रैक्टिकल वर्जन भी आपके सामने लेकर आऊंगी जिसमें आपको मैं स्कूल पे ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। बट आई थॉट कि मुझे ये सारी चीजें पहले आपको ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करनी चाहिए। सो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, एनी डाउट, सो यू कैन आस्क मी and you can comment me in my YouTube section. So student, I have completed my all the math and numeric function that is a part of your term 2 syllabus. So still if you are having any confusion, doubts, अगर आपको कोई और भी किसी भी टॉपिक में कुछ मुझे पूछना है, आईटी से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।